करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप धर्म को साथ लेके चलिए, धर्म के साथ लीजिए। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो मानवता का धर्म है, जो कभी किसी पे अन्याय अत्याचार करने की बात नहीं करता। वो सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत् की विचारधारा को लेके चलता है। तो इसलिए ही ज्यादा न बोलते हुए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, संतों की जय, सिद्धासन की जय, और हमारे पूज्य राजा राजेश्वरानंद जी महाराज की जय, हमारे नेटवर्क 10 की जय, और सभी संतों की जय बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, ओम तत्सत, ओम तत्सत। 2 मिनट के लिए सखी चंद्रकला जी अपने वाणी से यहाँ 2 शब्द। जय जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुषुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमयि ज्योतिर्घं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। May our hearts be pure, may our intelligence be pure, and may our environment be pure. With these thoughts and bhav, first of all, I would like to pay my salutation at the lotus feet of all our Pujya, revered saints who have traveled all the way from India towards London. And our Pujya Raj Rajeshwar Maharaj Ji, all the way from England, he has been promoting our Sanatan Dharma and making our community better. Also, I would like to pay my salutation as the lotus feet of Pujya Swami Mahamanishji Ji for organizing this beautiful event over here in London. Today we are not traveling to Himalaya. Today we are not going to the sacred place to do the darshan, to have the vision of our sadhu and santa. But today itself, the land of London has become the sacred place because of all your arrival. So I would like to welcome all of our saints and sadhus from the bottom of my heart, and would like to ask your blessings, because here in the UK, I have been working with different communities of people, youths and children. It is not like in our Bharatvarsha where children are happy, people are happy. They're having lots of problems in their life. We have lots of science and technology, but there is no peace. We have money, we have health, but still something is missing. So the message what I have been giving to this whole world is, that is our Sanatan Dharma. Sangachadvam, Samvatatvam, Sambho Manansi, Janatam, Deva Bhagam, Yatha Purve, Sanjanana Upasate. When we work together, when we sit together, then our world can become a better place. Our world can have a peace. Today everyone is talking about peace. We have so many technologies, but yet there is no technologies that can make us happy, that can give us the peace in our life. But the peace that we can have in our life is given by our saint, is given by our Bharatvarsha, is given by our scriptures. So today to the whole world, I would like to give one message is, if you want to have peace in your life, then come and experience the great message of our Sanatan Dharma, and you can see, like, explore and find the peace in your life. Jai Shri Ram. परम पूज्य गुजरात से पधारे हमारे जयंती राम बापा जी से अनुरोध है कि 2 शब्दों में आशीर्वाद देने की कृपा करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज रोज
ये सीताश्रम शक्ति सेंटर में एक नया आश्रम, नया मंदिर का जो भूमि पूजन हो रहा है, उसके अंदर ये तो बड़ा महाभाग्य है कि इतने बड़े सब संत का आशीर्वाद और राजराजेश्वर गुरु जी, एमना गुरु जी निखिलेश्वरानंद जी और एमना माता पिता, उसका भी उसके ऊपर खूब खूब आशीर्वाद। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि राजराजेश्वर गुरु जी को बस गुरु महाराज खूब लंबी आयु दे, खूब तंदुरुस्ती और स्फूर्ति दे और हम साथ में रहे और हमको साथ में रखे। बस ऐसा उसके पास आशीर्वाद मांगने के लिए बड़ा अवसर मिला कि हम यहाँ आए हैं। अस्तु एवं जय सद्गुरु साहेब। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी गिरिजी महाराज जी से अनुरोध है कि दो शब्दों में अभिवादन देने के पास है। नारायण नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उपस्थित समस्त महापुरुषों के चरणों में सादर करते हुए लंदन की इस भूमि पर और हमारे बहुत ही प्रिय अनुज जिनका नाम ही राजेश्वर और उन्होंने अद्वितीय संकल्प लिया है। और ये संकल्प केवल एक स्थान बनाने का नहीं है, यह संकल्प युग को बदलने का है, आने वाले समय को बदलने का, समय के प्रभाव को मोड़ने वाला ये संकल्प है। जिस स्थान से शांति, सद्भाव, बंधुत्व, करुणा, मैत्री, मानवता की गंगा बहेगी, एक ऐसा स्थान यहाँ निर्मित होने जा रहा है। और मैं लंदन के लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इस स्थान, ये कोई साधारण स्थान नहीं होगा। जिसका स्थान, इस स्थान में गिलहरी के बराबर भी योगदान रहेगा। जिस प्रकार से राम सेतु के निर्माण में गिलहरी को आज तक याद किया जाता है, हो सकता है बड़े बड़े लोगों को जो उस समय बड़े बड़े पहाड़ उठाकर लाए उनको स्मरण, उनका स्मरण न रहा हो, लेकिन गिलहरी का स्मरण अपनी सामर्थ्य क्षमता के अनुसार जिसका भी योगदान है, युगों युगों तक उसकी गाथा इस लोक में भी और उस लोक में भी सब जगह गाई जाती रहेगी। और ये जो सनातन का संदेश है कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण, विश्व के मंगल कामना के लिए ये स्थान का निर्माण हो रहा है कि हम परस्पर, पूरा विश्व एक परिवार है। एक ही वायु पूरे संसार को प्राण देती है, एक ही सूर्य पूरे संसार को प्रकाश देता है, एक ही परमात्मा की हम संतान है। तो यह संदेश सनातन का है, सबको मिलकर रहना, जियो और जीने दो का संदेश इसी भूमि से जाएगा। एक ऐसी भूमि के आज भूमि पूजन में हमारा सौभाग्य है कि नेटवर्क 10 को मैं साधुवाद दूंगा कि इस
महान और ऐतिहासिक कार्य में हमारी उपस्थिति, हमको ये सौभाग्य मिला, तो मैं संजय गिरी जी को भी इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और लंदन की जनता ने जितना प्रेम और जो हम लोगों की आवभगत की है, उस सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू, उनको धन्यवाद। परम पूज्य पांडोकर सरकार गुरुशरण जी महाराज, इनका नाम तो लोग बहुत कम जानते हैं, पांडोकर सरकार के नाम से ही प्रसिद्ध है, लेकिन पहली बार हमने इनका नाम भी विदित करवाया। आज शाम को भव्य और दिव्य दरबार भी आश्रम में लगने जा रहा है। आज तो बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा, टाइम भी सबसे ज्यादा आज वो लेंगे, लेकिन अभी मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि 2 शब्दों में आशीर्वचन देने की कृपा करें। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री राम रामाय नमः, श्री सीताय नमः, श्री हनुमत वीराय नमः, श्री पंडोकर सरकाराय नमः। बहुत ही आनंद का और आत्मा हृदय आज बहुत गदगद है कि भारत भूमि से हमारे समस्त संत, महंत, श्रीमंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु और हमारे आदरणीय सम्माननीय लंदन के वो दिव्य पुरुष, वो महापुरुष, इन्होंने भारत भूमि गुजरात से आकर के श्रद्धा आश्रम के माध्यम से लंदन में ही नहीं पूरे विश्व में जितने भी आस्था श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं, श्री आदरणीय राजेश्वरानंद जी महाराज का परम स्नेह और सदैव संत आचार्यों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और यहाँ के भक्तजनों को हमारे श्री राजेश्वर जी महाराज के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ये भारत माता की कृपा है और भारत की जो शक्ति है, श्री भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, ऋषि महर्षियों के दिए हुए तपस्या, साधना, यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से, योग के माध्यम से आज लंदन में अलग जगह रखी है सनातन की। इसके लिए साधु संत निश्चित है, महापुरुष उनको साधुवाद देते ही हैं, साथ साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं ये आस्था का केंद्र बिंदु बड़ा विशाल और दिव्य हो, यहाँ यज्ञ अनुष्ठान निरंतर यज्ञ के रूप में भी हो। आज भूमि पूजन हुआ आश्रम के लिए, एक नया निर्माण, सत्संग के लिए, हमारी बेटा बेटियों को मार्गदर्शन, शिक्षा बिंदु और ध्यान योग के लिए आज बड़ा पुण्य, इतना बड़ा पुण्य का कार्य हुआ है। ये भारत में तो होता ही रहता है, लेकिन यहाँ हमारे आए हुए संतों ने लंदन में रहने वाले सभी सनातनी बंधुओं को और ईश्वरवादी भक्तों को जो आज इतना बड़ा कार्य श्री राजेश्वर जी के माध्यम से कराया गया है, ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें कोई जात पात की कोई बात नहीं, किसी कोई प्रकार के भेद नहीं। सर्वधर्म समभाव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः, सर्वेषां देवानां आत्मा यज्ञः। या किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, समस्त लोगों के लिए है। भारतीय सनातनी बंधुओं को तो है ही, साथ साथ लंदन के समस्त नागरिकों को भगवत कृपा की शक्ति का और ज्ञान का, विज्ञान का, अध्यात्म का जो केंद्र, इस केंद्र के माध्यम से सबका कल्याण होने वाला है, सबका भला होने वाला है। बुद्धि की विस्तार, ज्ञान विज्ञान का हृदय में स्थापित योग के माध्यम से, साथ ही साथ आज के योग में आज की विद्या का प्रचार प्रसार, वसुधैव कुटुंबकम का भाव के साथ परिवार जोड़ने की जो विधा यहाँ से दी जाएगी, ये बहुत बड़ा दिव्य महायज्ञ होने वाला है और जो हो रहा है। आज हमारे नेटवर्क 10 के आदरणीय बड़े भाई पंडित श्री संजय गिरी जी हमारे बड़े भाई हैं, जिनके द्वारा एक दिव्य अनुष्ठान, ये अनुष्ठान तो कहीं भी किया जा सकता था, परंतु वसुधैव कुटुंबकम के जो परिवार के जो मुखिया होते हैं, जो उनके परिवार के सदस्य होते हैं, उनका भाव रहता है कि पूरी वसुधारा जो है, जो इतना भूलोक है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो हमारा है। पंथ समुदाय अलग अलग होते हैं,
लेकिन सबकी खोज परमात्मा तत्व की होती है। उसके लिए हमारे पंडित श्री संजय गिरी जी ने नेटवर्क 10 के माध्यम से छठी संत संसद के रूप में लंदन में स्थापना की है। इसके माध्यम से पूरे दुनिया में मैसेज जाएगा कि संतों का क्या महत्व है, संत क्या सोचते हैं, संतों का क्या भाव रहता है। संत सदैव सबका कल्याण चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबके जीवन के उत्थान की कामना करते हैं और कहते हैं जियो और जीने दो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ऐसा हमारे साधु संतों ने साधु वचन देकर के, साधु बात देकर के समस्त इंग्लैंड के निवासियों को, हमारे सनातनियों को एक साथ एक दृष्टि से साधुवाद दिया है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। बहुत बढ़िया। शब्दों के समुद्र पीठाधीश्वर अम्बाला के महामहिम पूज्य महंतानंद जी महाराज से अनुरोध है कि कम ही शब्दों में उसे वचन देने की कृपा। ओम सप्त दीपा वसुंधरा, ये धरती 7 दीपों पर बनी। मानवता का पहला संदेश और आखिरी संदेश ये सनातन का संदेश। और आज जो यहाँ स्थापना हो रही है, सिद्ध आश्रम के जो पीठ पूर्व से स्थापित है, उसके शाखा के रूप में यूं कहें कि हिमालय के सिद्धों के बीज को हमारे श्रद्धेय राज राजेश्वर महाराज जी ने पहले ही यहाँ बो दिया था 25 वर्ष पहले, और वो बीज वृक्ष के रूप में बनने के लिए आकुल व्याकुल है। और उसी के लिए संत लोग उसमें जल डालने आए। नेटवर्क 10 के माध्यम से ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, श्री राज राजेश्वर जी महाराज का प्रयास, अन्य संतों का प्रयास पूरे विश्व में मानवता के उस मौलिक संदेश का प्रयास है जो आदि काल से रहा है, जो आगे फिर से होने वाला। छठी संत संसद की व्यवस्था हमारे आत्मीय संजय गिरी जी ने व्यवस्था की। इंग्लैंड की धरती पर उनका साहस, उनका पराक्रम, उनका परिश्रम तो है ही, लेकिन अभी तक एक बार भी एक शब्द भी हमने नहीं कहा, लेकिन उनके साहस के पीछे निश्चित ही भारत सरकार की गद्दी पर बैठे हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी शौर्य दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हुए महायोगी आदित्यनाथ जी का भी साहस और उनके प्रभाव का संबल, अन्यथा हिम्मत करना बहुत मुश्किल था कि दूसरे देश में जाकर आप सम्मेलन तो कर लें, संगीत तो कर लें, गंधर्व तो नचा लें, कथा तो करा लें, लेकिन संत संसद कर लें, ये मुश्किल था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, ये फलित हो, वृक्ष बने। इंग्लैंड ही नहीं, पूरे विश्व में इसके फल सबको प्राप्त हो। संस्कृति का फल सब लोग चखें और पुरुष पुष्ट बन जाए, यही हमारी कामना है। ओम शांति। अतः खाने के महाराज से गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर द्वारा आयोजित एक दूसरी संस्था जो बाजू में भूमि पूजन होने जा रही है, हिंदुस्तान के जैसे महाराज जी ने कहा कि कुंभ मेला जैसा वातावरण हुआ है, इस सभी की ऊर्जा आशीष भूमि पर है और उनका सभी का आशीर्वाद। राजेश जी महाराज जी एक मेरा मित्र है, मेरा भाई है, और हम लोग 2012 में कम से कम 20 साल से जुड़े, और मुझे जब भी मिलते हैं तो बोले कल अपने चले जाएंगे, लेकिन हमारे निरंजन स्वामी ने कहा ना, आगे पीछे जिनके ऊपर गुरु कृपा होती है ना, ये कर सकते हैं। भगवान की इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं। ईश्वर की जब कृपा होती है और तब सही गुरु मिलता है, और गुरु की जब कृपा होती है
तो ऐसे हमारे राज राजेश्वर गुरु जी महाराज उनको चरितार्थ करके दिखाते कि गुरु की कृपा क्या कर सकती है, देश विदेश में जाके भी भारतीय संस्कृति को झंडा लहरा सकती है। आप सभी हम लोग उनके साक्षी हैं और मैं कामना करता हूँ कि जल्दी में जल्दी इसका काम निर्माण हो और यह कल्प वृक्ष तरह पूरा विश्व के अंदर उनका संदेश जावे और पूरा विश्व में सुख शांति समृद्धि और वसुधैव कुटुंबकम भावना जिनके हृदय में अथरित जरूर रहती है, वैसे हमारे राज राजेश्वर गुरु महाराज को हृदय से मंगल शुभकामना देते हुए मेरी वाणी का विराम देता हूँ। भारत माता के सिद्धाश्रम की जो स्थापना 25 वर्ष पूरे हुए मुझे राज राजेश्वर गुरु जी ने बहुत चर्चा किया। जब मैं आया था यहाँ पे तो उनकी तपस्या को मैंने देखा। एक कमरे में उसी पे सोते थे, उसी में ऑफिस चलाते थे और दिन भर पूरे लंदन में कथाओं के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, सुंदरकांड के माध्यम से प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन इनके जो डीएनए में जो संतों के प्रति अगाध निष्ठा और प्रेम था वो बार बार भारत बुलाती थी। कुंभ मेला में कोई भी कुंभ मेला हो, लेकिन सबसे अग्रणी भूमिका निभाते थे। समय अपना यहाँ से निकाल करके जाना, संतों का आशीर्वाद लेना, और वही कृपा है कि आज उनका संतों के प्रति जो प्रेम है वो भारत से सभी संतों को खींच करके लंदन की धरा भूमि पर लेके आई। आज जो हम यो महोत्सव मना रहे हैं वो 25 साल इसकी स्थापना के हुई है और उसी रजत जयंती को उपलक्ष्य में देव और भव्य आश्रम का निर्माण का आज भूमि पूजन हो रहा है। इसी के अंतर्गत जूनागढ़ के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता दुलेश्वर पीठाधीश्वर और हम सभी के सिरमौर अग्रगण्य परम पूज्य नारायण गिरी जी महाराज है दो शब्दों में आशीर्वचन प्रदान ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपीत जम्बू फलचार भक्षणम उमास्तम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर सर्वात भंगजम। बहुत प्राचीन समय में इंग्लैंड से कुछ लोग हिमालय पहुंचे और निखिलेश्वरानंद जी महाराज से बोला कि एक कोई अच्छे संत दे दीजिए जिसमें सनातन धर्म का प्रचार का जरूरत है। तो महाराज वहां पर बोले कि 10 लोगों को ले जाओ। 10 लोग जब चले वहां से तो एक देश में पहुंचे तो वहां देखा कि एक बहुत अच्छे राजा के वहां रुके थे, एक कन्या बहुत सुंदर थी। कुछ लोग वहां पर रुक गए। फिर तीसरे देश में उधर दूसरे देश में पहुंचे तो कुछ लोग बोले कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छा है, देश है, हरियाली भी बहुत है, फल भी बहुत है। तो कुछ लोग वहां पर रुक गए। जब फ्रांस में आए तो 2 लोग रह गए। एक ने बोला कि हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बोले कि भाई धर्म नहीं होता है, तर्क होने लगा। तो बोले भाई यहाँ तो बहुत नास्तिक है। तो एक जना वहां रुक गया और हमारे राजेश्वरानंद जी लंदन पहुंच गए और इन्होंने जो है धर्म को यहाँ पर स्थापित कर दिया। हर हर महादेव, जय हो। हमारे नागा नाम अग्रगण्यम च, जिनके रूप से ही शिव का उत्पन्न हो जाता है, भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं और सभी शाही स्नान का जो नेतृत्व करते हैं, सबसे आगे चलते हैं। परम साधक शिव के भर मैं इनके यहाँ का साधना स्थली है पंजाब में, दूर दूर तक कोई सनातनी हिंदू आवा नहीं, केवल अकेले ये थे और मैंने साधना तपस्या देखी
और आज लंदन की धरती पर हैं। परम पूज्य राजराजेश्वर गुरु जी के कर रही है, बहुत उनकी वार्ता होती रहती है। मैं चाहता हूँ उन शब्दों में इस आश्रम को आशीर्वाद चाहिए। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नागभूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे सूरय शशांक वाहनी नायनम वंदे मुकंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम वंदे शिवम शंकरम। मैं अपने आराध्य देव भगवान शिव और अपने गुरुजनों के श्री चरणों का ध्यान करता हूँ। समस्त ऋषिवृंद जो भारत भूमि से यहाँ पर इस समय सिद्ध आश्रम सिद्ध शक्ति सेंटर की इस पावन धरा पर हैं, उन सब ऋषिवृंद के श्री चरणों को मैं नमन नारायण करता हूँ। आज सिद्ध आश्रम की 25वीं वर्षगांठ पर हमारे जैसे निरंजन स्वामी जी ने कहा कि अभिन्न मित्र राजराजेश्वर गुरु जी, उनके द्वारा एक प्रकल्प चलाया गया था। सनातन का एक ध्येय लेकर के, एक सनातन के प्रचार प्रसार का एक पताका लेकर के उनका यहाँ इस लंदन की धरती पर आगमन हुआ। उनके जो आराध्य देव हैं, उनके जो गुरुदेव हैं भगवान निखिलेश्वरानंद जी, मेरा जिस प्रकार से राजराजेश्वरानंद जी से बड़ा अभिन्न रिश्ता है, ऐसे मेरा उनके प्रति निखिलेश्वरानंद जी के प्रति मेरा श्रद्धा का एक बहुत गहन रिश्ता है। और उनकी भक्ति और शक्ति किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज उसी सिद्ध शक्ति सेंटर में एक नव निर्माण आश्रम का भूमि पूजन है, जिसमें समस्त भारत के जो अग्रगणी संत हैं उनका यहाँ पर पदा अर्पण हुआ है। अनादि भवंति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभवा यगादि भवंति भूजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। ये यज्ञ की अग्नि है। ये पंच भौतिक शरीर के लिए जिस प्रकार अन्न और जल की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार उस वृष्टि के लिए जैसे यज्ञ की जरूरत पड़ती है। आप देख रहे हैं कि यज्ञ हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए, आत्मिक चिंतन के लिए, अपनी आत्मा का उस परमात्मा से मिलन के लिए यज्ञ की एक आहुति में एक शब्द आता है, साधना। और जिस प्रकार राजराजेश्वर जी ने अपने गुरुजनों से साधना का एक मार्ग लेकर के उच्च कोटि की साधनाएं करी हैं, आज कई साधनाओं में वो पारंगत हैं और उन्हीं साधनाओं के माध्यम से वो पूरे विश्व का चिंतन करते हुए विश्व के सद्भाव के लिए, विश्व के कल्याण के लिए वो कार्यरत हैं। मैं डॉक्टर स्वामी भूपेंद्र गिरी इस समय अपने उसी सिद्ध शक्ति सेंटर को, लोग तो कह रहे हैं सभी कि सिद्ध शक्ति सेंटर में आज स्थापना हो रही है नव निर्माण की, हम कहेंगे हम अपने ही सिद्ध शक्ति सेंटर में, क्योंकि जिस प्रकार राजराजेश्वर जी का ये घर है उतना ये हमारा भी घर है, आप सबका घर है। हम अपने इस घर में इस नव निर्माण के इस सुंदर उपलक्ष्य पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके गुरुजनों से और भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि ये कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो, ताकि समस्त भारत से नहीं समस्त विश्व से ऋषिवृंद जब यहाँ सिद्ध शक्ति सेंटर में आए तो उनको कभी ऐसा ना लगे कि हम किसी दूसरी धरती पर हैं, उनको ऐसा ही लगे कि हम अपने घर में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ शुभस्तु, वाणी को विराम। हरिओम तत्सत। केवल हिंदू शब्द कह करके हम सभी सनातनी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैन समाज से विरोध कर रहे हैं हमारे देवेंद्र जी महाराज जी। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कम शब्दों में अपना आशीर्वचन और शुभकामनाएं देने के साथ भारत चलो भारतवर्ष से पधारे सभी सनातन संस्कृति के वह दिव्य और भव्य पुरुष, सभी के लिए प्रणाम।
और आज सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की जो यहाँ स्थापना जो 25 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसका एक और यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि राज राजेश्वर जी गुरु जी जो एक ऐसे दिव्य और भव्य योग पुरुष हैं जिन्होंने अपनी कार्य क्षमता से सिर्फ भारत का ही नहीं गौरव बढ़ाया है, बल्कि इस इंग्लैंड का भी गौरव बढ़ाया है। और मैं चाहता हूं कि सिर्फ यहाँ पर जितने भी हमारे पूज्य संत जन हैं, सिर्फ हमें इसका भूमि पूजन का सौभाग्य नहीं हासिल करना है, बल्कि मैं ये भावना भाता हूं कि यहाँ पर जब निर्माण हो तो उसमें एक ईंट हम सबकी ओर से इसमें लगे, जिससे कि इसका और हम सबका गौरव बढ़ेगा और उनका सहयोग भी होगा। और यही भावना भाता हूं कि ये सनातन संस्कृति का यह शिखर पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम और जीव जिनेंद्र की संस्कृति का फहराने में सक्षम हो, हमारी संस्कृति का विस्तार हो। और इस अवसर पर मैं पूज्य गुरु जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस तरह का जो बीना उठाया है वो आपका सफल हो और हम सब उसमें आपके लिए कुछ कर सकें, तो ये जीवन का सौभाग्य है। इन्हीं सब बातों के लिए ओम नमः जय जय। आज सचमुच दे दीजिए। ये है लो हरिद्वार बन गया, ये है लो आज हरिद्वार बन गया। और हरिद्वार वास्तव में हरि शासन को आधार बन गया। और स्वामी परमेशानंद जी महाराज हमारे बीच में हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। संस्कृत के निष्णात विद्वान, परम वैयाकरणी संत, संगीत के मूर्धन्य विद्वान, शाम वेद गाने वाले और अपने क्षेत्र में, गौड़ क्षेत्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में सैकड़ों गुरुकुल चलाने वाले, सबको संस्कार और संस्कृति से जोड़ने वाले हम सभी संतों के अग्रगण हैं। सभी सनातन की जितनी शाखाएं हैं, सभी संस्थाओं का नेतृत्व करते हैं। ऐसे परम पूज्य महाराज जी से निवेदन है, उसके लिए तो नहीं कह सकता कि 2 मिनट में तो आपके अग्रगण हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर का भूमि पूजन समारंभ में उपस्थित सभी संतों के श्री चरणों में वंदन करते हुए सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर के पीठाधीश्वर गुरुदेव राज राजेश्वर जी महाराज जी, आपके इस महती प्रयास के लिए मैं मानता हूं कि भारत देश और भारतीय संस्कृति की आपने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्ति बढ़ाई है, मान बढ़ाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत वंदन है। और मैं चाहता हूं कि ये आज जो इंटरनेशनल शक्ति सेंटर का भूमि पूजन समारंभ यहाँ संपन्न हो रहा है, यहाँ सनातन धर्म की शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ये सेंटर में या इस आश्रम में, इस सिद्ध आश्रम में आप योग सीख सकते हैं, आप आयुर्वेद का ज्ञान ले सकते हैं, आप यहाँ आकर वेदांत के विचार पढ़ सकते हैं। यहाँ एक अच्छी लाइब्रेरी होगी, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस वेदों में, संस्कृत के क्षेत्र में आप यहाँ आकर पढ़ाई कर सकते हैं,
ऐसे एजुकेशन सेंटर की मैं शुरुआत ये मान रहा हूँ। और ये सब काम जो है वो हमारे हैरो के हीरो हमारे गुरुदेव राज राजेश्वर जी महाराज जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। राज राजेश्वर जी महाराज जी, आप इतने संतों को यहाँ उपस्थित करके इस ऐसा कहा जाता है प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि, आगे जो होने वाला है वो आज ही दिख रहा है। सभी संतों के आगमन से, सभी संतों के रूप में देव देवता यहाँ इस सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर के भूमि पूजन समारंभ में यहाँ उपस्थित है। तो यही आशीर्वाद है और आगे जाकर ये सनातन का डंका जो है वो विश्व स्तर पर इसी जगह पर से जाएगा। मैं गुरुदेव से यही कहूंगा कि ये हनुमत शक्ति जो यहाँ विराजमान है, इसको ऐसे ही तपःपूत संतों के आशीर्वाद से बनाए रखे। और इस लंदन में जितने हमारे सनातनी बंधु हैं, उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ हम सनातन को देखें, सनातन को सीखे, वो सीखने की व्यवस्था यहाँ हो। यही हम सब संतों की इच्छा है और वो आप पूरा करेंगे ऐसा मान के मैं रजत महोत्सव और गुरुपीठ पर आकर आपके हम पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस रौप्य महोत्सवी कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपको अभिनंदन। और यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं उनको मैं कहूंगा कि आप सब इस कार्य में अपना अपना योगदान देकर सनातन का भगवा जो है वो ऐसे ही दिग्विजयी बनाए रखे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। धरा पर किसी अधर्मी द्वारा सनातनियों पर मौखिक हमले होते हैं अथवा किसी प्रकार की उनके ऊपर विपदा आती है, तो आश्रम डंके के चोट पर खड़ा होता है और सनातन की रक्षा के लिए आगे आता है। हम चाहते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि जब ये आश्रम अपने भव्य स्वरूप में आएगा तो ये सभी का नेतृत्व भी करेगा। इसी कड़ी में चेतन ज्योति संस्थानों के परमाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज से अनुरोध करता हूँ 2 शब्दों में आशीर्वचन दे देने के बाद। ओम मूकं करोति वाचालं मंगोलंघते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानंदं माधवम्। आज इंटरनेशनल सिद्धाश्रम के भूमि पूजन पर और आज त्रिदिवसीय संसद को चलते हुए आज चतुर्दिन श्रावण मास के इस सोमवार के दिन 13 की 13 अखाड़ों का प्रतिनिधित्व ये हमारे सिद्धों में सिद्ध मेरे परम प्रिय मित्र राजेश्वर जी महाराज का ये तब का प्रताप है कि आज भारत की भूमि से आज सिद्धाश्रम के इस भूमि पूजन पर उपस्थित हुए हैं। यह निश्चित रूप से महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद जी महाराज जी ने कहा कि ये सच्चे प्रधानमंत्री जी के और वो भी पावन भूमि गुजरात की पावन भूमि पर, और ये सच्चे हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्य योगीनाथ जी की जो प्रेरणा हमारे नेटवर्क 10 टीवी को हमेशा से ही वो समय समय पर भी आकर संसद के बीच में अभी भागीदारिता देके जो मनोबल को बढ़ाया है, उसका ये परिणाम है कि आज 6ठी संसद हमारे इस इंग्लैंड की भूमि पर हो रही है। मेरा 10 वर्ष पूर्व आगमन हुआ। भारत के लब्ध प्रतिष्ठित संतों में से ऐसा कोई भी संत नहीं है जो सिद्ध आश्रम में आकर यहाँ पर आने वाले यहाँ भक्तों को सनातन धर्म से लेकर भारतीय संस्कृति का ज्ञान ना दिया हो। मेरी तो एक ही अपेक्षा है कि यहाँ पर एक, जैसे कि महाराज जी बता रहे थे कि यहाँ पर लाइब्रेरी बनेगी, संस्कृत का अध्ययन होगा, और मैं इससे आज संकल्प अग्नि यहाँ साक्षी है, सभी संत हैं कि एक आने वाले समय में भगवान इनको इतनी शक्ति दे कि एक अद्भुत इस पर विश्वविद्यालय नहीं तो पहले गुरुकुल की स्थापना हो। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। इसी के साथ ही साथ
मैं यहाँ पुनः ही राज राजेश्वर आश्रम जी और उनके लघु भ्राता मुकेश जो भरत के रूप में है, सच में अद्भुत उनकी भी शक्ति है। मैं समस्त उन माता पिता को भी वंदन करता हूं कि जो ऐसे सपुत्रों को जन्म दिया, और हम सब भारत के संत आपके साथ सदैव एक आवाज पर खड़े रहेंगे और हर योगदान के साथ आपके साथ सदैव हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः ही नेटवर्क 10 टीवी और सिद्धाश्रम का हम सब आभारी हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। राजराजेश्वर गुरु जी जब कोई धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन करते हैं तो उसमें उपस्थित करके उनका साथ देने वाले महात्रिवाणी अखाड़े के गुरु जी महाराज जी से निवेदन है कि दो शब्दों में अपना से वचन पढ़ें। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पंगविभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिन नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। सभी माताओं बहनों भाइयों देवी सज्जनों और महामंडलेश्वर सभी भारत से जो बड़े बड़े महान विभूतियां संत सबके नाम लेंगे तो बहुत समय लगेगा। मैं सबको साष्टांग प्रणाम करता हूं। मेरे परम पूज्य आदरणीय श्रीमान राज राजेश्वर गुरु जी, सचमुच अगर संत देखना है, किसी ने कहा है शैले शैले न माणिक्यम, शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिम न गजे गजे, साधु ना ही सर्वत्र चंदनम ना बने बने। हर जगह संत नहीं मिलते हैं, हर जंगल में चंदन नहीं होते हैं, हर पहाड़ में मोती नहीं होती है, माणिक्य नहीं होता है। अगर संत देखना है तो सिद्ध आश्रम में देखिएगा। इस सिद्ध आश्रम के संस्थापक परम पूज्य आदरणीय राज राजेश्वर गुरु जी महाराज, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इतना मान सम्मान, इतना प्यार, इतनी इज्जत जो देते हैं वो संत ही दे सकता है किसी एक साधारण इंसान को। तो गुरु जी जो आपने संकल्प लेके चले हैं, वो संकल्प भारत के इतनी महान विभूतियां यहाँ आकर के आपको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जो संकल्प है वो सिद्धि की तरफ जाए, यही मेरी शुभ कामना है। और मैं भगवान आशुतोष भोले शंकर के चरणों में, श्रावण का महीना चल रहा है, दूसरा सोमवार है, यही प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा आपको तन से, मन से, धन से, बल विद्या बुद्धि से खूब संपन्न करे। कहते हैं ब्रिटेन सारी दुनिया में राज किया है, आप सबको मालूम है। मेरा पूरा विश्वास है इस सिद्ध आश्रम, इंटरनेशनल सिद्ध आश्रम राज राजेश्वर गुरु जी के तत्वधान में ये जो सेंटर बनने जा रहा है, ये सारे विश्व को संचालित करेगा, यही मेरी शुभकामना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सिद्धाश्रम और उसके संकल्प भी सिद्ध होते हैं। उसी के अंतर्गत उमा स्वामी जी से मैं अनुरोध करता हूँ, कम शब्दों में समय अधिक हो चुका है, संतों को भी आगे कार्यक्रम में सम्मिलित होना हो, तो कुछ में बात
लग नहीं रहा ये लग सत्य सनातन धर्म की जय। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। यहाँ पर इतने उपस्थित संत महंत मंडलेश्वरों की जो उपस्थिति है उसमें इतना ही कहूंगी कि परहित बस जिनके मन माहे, तिन कहा जगत दुर्लभ कछु नाहि। मैं 24 साल से ये सिद्धाश्रम का दर्शन करती हूँ। राज राजेश्वर गुरु जी को भी मिलना होता है कभी कभी, मगर जो भारत से सनातन संस्कृति का जो संस्कार लेके यहाँ लंदन की धरती पर आए हैं, हमेशा एक ही चिंतित रहते हैं कि कैसे ये सनातन धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो। और यहाँ पर सनातन धर्म की जो ध्वजा लहरा रहे हैं उसके लिए परम कृपालु परमात्मा से मैं प्रार्थना करूंगी कि राज राजेश्वर गुरु जी को खूब लंबा आयुष्य दे। और उनका संस्कार सनातन धर्म के प्रति तो प्रेम है, मगर संतों के प्रति कितना प्रेम है वो आज उसका दर्शन में कर रहे हैं। यहाँ पर इतने संत इकट्ठे हुए हैं, यहाँ जो जो भक्त लोग आए हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली है कि मेरे को भी यहाँ उपस्थित रहने का समय मिला, अवसर मिला। मैं नहीं जानती थी, मगर अनायास फोन आया और मैं यहाँ पर आ गई। तो मेरा सद्भाग्य मानती हूँ कि संतों के चरणों में बैठ के मेरे को 2 शब्द कहने का मिला। हरिओम तत्सत, हरिओम। लंदन में सेवा और सत्संग के माध्यम से जो संतों पर उन्होंने संतों के हृदय में जगह बनाई, विजय प्राप्त किया। ऐसे विजय बाबा जी की नम्रता और विनम्रता के मूर्ति है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ क्योंकि वो सत्संगी पुरुष है, बहुत सत्संग उनके चलते हैं पूरे लंदन में, तो ज्यादा समय लेते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ 2 शब्दों में अनुरोध करूंगा, कैसे वचन देने की कृपा। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वत्र साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते नमस्ते। मैं बहुत ही अपने आप को एक सौभाग्य पुरुष मानता हूँ, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले, 1 साल की बात है, जब मुझको गुरु राजेश्वर से भेंट हुई और उसके बाद इन्होंने मुझे ऐसा एक प्रेम दिया जिसको शायद कि मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकता। और मेरी तरफ से अब सभी संत महामंडलेश्वर जगत गुरु जी को मेरी चरण वंदना, सबके चरणों में नमस्कार। मैं हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे छोटे भाई गुरु राजेश्वर जी महाराज जी को इतना प्रदान करें शक्ति कि वो अपने जगत में, संसार में, विश्व में एक सनातन धर्म को लेकर जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, और ये एक ऐसा हमारा एक हेड ऑफिस बने, ऐसा एक सेंटर बने जहाँ की हम इस सेंटर से सारी दुनिया में अपने सनातन धर्म का जो हमारा प्रचार है, मानवता का जो अधिकार है हमें मिलना चाहिए, जो मानवता के प्रति प्रेम है वो जो ये दे रहे हैं। मैं यही हनुमान जी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, हमारे छोटे भाई गुरु राजेश्वर जी को इतनी की महान शक्ति दीजिए जैसे कि वो आप अपने कर्म कर रहे हैं अभी, अपनी शक्ति के साथ, हनुमान जी की कृपा के साथ सबको दुखों को कष्ट निवारण कर रहे हैं और उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं। यही मेरी प्रार्थना है कि गुरु राजेश्वर जी के साथ मैं हमेशा तन, मन और धन के साथ इनके साथ खड़ा रहूं। जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। यही मेरा इनको आशीर्वाद है और प्रभु नारायण का इनके साथ आशीर्वाद बना रहे। तो नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत्र का। सभा अब अंतिम सत्र की ओर है। एसपी हमारे स्वामी नारायण संत परम पूज्य एसपी स्वामी जी महाराज से अनुरोध करता हूँ 2 शब्दों में आशीर्वाद देने की कृपा करें। दो 1 मिनट में आने वाले संतों के चरण में वंदन।
पूजन विधि में सब संतों आके बैठे हैं। हिंदुस्तान में जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो गंगा किनारे पे जाता है, किसी मंदिर के पर बैठ के किसी संत महात्मा के पास जाकर अपने दुख की बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, और इसको ऐसी शक्ति मिलती है कि इनके कारण उनका दुख समाप्त हो जाता है। वो हिंदुस्तान का सनातनी व्यक्ति जब यहाँ लंदन में आकर बस जाता है और यहाँ जब समस्या होती है तब बहुत बड़ी विकट परिस्थिति होती है। यहाँ तो कुछ अपने परिवार के सदस्य नहीं मिलते हैं, और विदेश की इस भूमि में जब ये शक्तिपीठ में आकर परम राजराजेश्वर गुरु जी को मिलते हैं और यहाँ से जो इसको सांत्वना और आशीर्वाद मिलते हैं, मार्गदर्शन मिलते हैं, वही हमारे हिंदुस्तान से जो यहाँ सब लोग आए हैं इनके लिए बहुत बड़ा ये आश्वासन का स्थान है। यहाँ आकर राजराजेश्वर गुरु जी जो भी मिलते हैं उसके जीवन में जो भी समस्या है उनमें सभी लोगों को वो इतना हेल्प करते हैं। इसलिए हम सब महात्मा आज भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि इस भूमि पूजन हो रहा है वहीं से वहां भगवान की ऐसी शक्ति हो कि सब हमारे सनातनी भाई यहाँ आकर शांति की अनुभूति प्राप्त करे, ऐसा ये पवित्र स्थान बने, ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर के संचालक, संस्थापक और अध्यक्ष परम पूज्य राजराजेश्वर गुरु जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आए सभी संतों का स्वागत अभिनंदन करें। सबको धन्यवाद। हमारे यहाँ जो हैरो के डेप्यूटी मेयर है उनको मैं निवेदन करूं, इससे पहले हमारे संत श्री तलोचन दास जी महाराज पधारे हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पूज्य महाराज श्री आपका आगमन हुआ और सिद्धाश्रम की इस पावन धरती पर संत का जब आगमन होता है तो तीर्थ स्थान और चमकने लगता है। आपका स्वागत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए। मुझे महाराज सिंह का आगमन हुआ है। यहाँ हमारे डेप्यूटी मेयर काउंसिलर मीना परमार, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द में उनका भी एक पूर्ण रूप से। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। तुम सबको आनंद स्वागत है। मैं सिर्फ मेयर नहीं हूँ हैरो की, मैं एक डिवोटी भी हूँ ये मंदिर की। मैं 8 साल से ये कंट्री में हैरो में रहती हूँ और मैं राजेश पे इंडेटेड हूँ। उसको मुझे इतना साथ दिया था जब मेरा फादर की डेथ हुई थी लंदन में, उसको मुझे हिम्मत दी हनुमान चालीसा की। So I'm indebted to Rajesh ji for all his support. I'm so delighted that you have made this like a Kumbh Mela, and I'm looking forward for this temple to grow strength to strength, and we believe build something which will preserve our culture, and we bring India to Harrow. So thank you, Rajesh bhai. Thank you so much for bringing all the sons here, and thank you for giving us these blessings. Thank you very much. आपने तो फिर उस दम लिखी आपने तो सचखंड नानक दरबार अध्यक्ष, दास धर्म के संस्थापक हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। दास धर्म के माध्यम से सनातन
संस्कृति की सेवा करते हैं। हम 3 दिन से उनके यहाँ कार्यक्रमों में सभी संत लोग थे। उनके जो अनुयायी हैं, अंतर हैं, सेवक हैं, अद्भुत विनम्रता के प्रतीक हैं। उनकी जो सेवा भावना, जो उनके अंदर सनातन संस्कार, वो अद्वितीय है। हम सब उनकी सेवा से अभिभूत हैं और आज वो सिद्ध आश्रम के 25वें वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं और उनको सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। परम पूज्य महाराज जी इसी कार्यक्रम के लिए भारत से आए और संत संसद की गरिमा बढ़ाई और ऐसा संत संसद आयोजन हुआ कि लंदन की धरती से पूरी दुनिया में ये सनातन संदेश गया। परम पूज्य महाराज जी से अनुरोध करता हूँ कि आसन ग्रहण करें और 2 शब्द इसके आसन के स्थापना दिवस और नव निर्माण हेतु जो आप भूमि पूजन है उसके लिए परम पूज्य महाराज जी से वाली कैसी है इधर पूज्य महाराज से निवेदन करता हूँ। इंतजार में रहेंगे। महाराज जी का मिलनसार स्वभाव है। कहीं पर भी जब आते हैं सभी संतों के पास जाकर के हृदय से गले लगते भी हैं और लगाते भी हैं। उनकी अभय की कृपा सभी भक्तों पर और सभी आपको परम पूज्य इस आश्रम के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं और आज उसका दिव्य भूमि पूजन का जो मैं उनके अनुरोध करता हूँ इनसे वाले में अच्छा नहीं जा रहा ना आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सतगुरु देवे नमः, श्री गुरुदेव नमः। आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सतगुरुदेव नमः, श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मेन श्री गुरुदेव। हे गुरुदेव कृपा करिए प्रभु, आप सब गुरु भगवान आज इतना पावन दिन है, महादेव का सावन का सोमवार है और खास कृपा हमारे पूज्य श्री सबके हरमन प्यारे, सबको जोड़ने वाले, सबको अपना प्रेम बांटने वाले और सबसे प्रेम लेने वाले, देश विदेश में विश्व विख्यात आदरणीय हमारे स्वामी संत महासंत श्री राजराजेश्वर जी महाराज जी,
मैं बधाई देता हूं उनको। आप सब लोगों ने आशीर्वचन अपने प्यारे प्यारे आपने आज यहां आकर ये भूमि कृतार्थ पवित्र निर्मल कर दी, कंचन कर दी। आपके चरणों में ही कृपा है। सात धरत पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। हमारी गुरबाणी में एक बड़ा सुंदर संदेश जाता है कि जहां सतगुरु आ जाए वो धरती पवित्र हो जाती है, और जहां ये सतगुरु के प्यारे 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 संत आ जाएं, इतने प्यारे प्यारे संत यहाँ पहुंच जाएं, वो तो बड़ी कृपा हो गई। ये आज का जो विषय है आप सबने देख ही लिया है, सबने अपनी कृपा दे दी है। मैं हनुमान जी से, महादेव से, भगवान से, श्री हरि जी से यही प्रार्थना करता हूं कि ये महाकुंभ यहां लगता रहे। आपके चरण पड़ते रहे, इस धरती का ये पावन औरा बढ़ता रहे, यहाँ के लोग, यहाँ के वासी, इस क्षेत्र के लोग का पार उतारा होता रहे हमेशा। आपका शुक्रिया, आपने इतना सुंदर प्रयास किया है खैरों के लोगों के लिए। मंदिर तो जगह जगह होंगे, ऐसा नहीं है कि मंदिर तो कोने कोने में होने चाहिए, पर इस मंदिर को भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए, अलौकिक बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, ये जो सुंदर सुंदर हिंदुस्तान से 8000 किलोमीटर की यात्रा करके आप पहुंचे हो, तो ये सुंदर आपके आने से ही जगह पे हो गई बस। तो ये संकल्प लिया है हमारे बड़े भाई ने, ये बहुत सुंदर बनेगा। आपके कर कमलों से आज शिलान्यास हो रहा है, हवन हुआ है, हनुमान जी की कृपा दिख रही है। आप सब लोग कृपा कीजिए, ऐसे ही जब भी आप आओ तो कहीं ना कहीं मंदिर का कोई शिलान्यास कर ही दिया करो, कहीं ना कहीं। तो ये हमसे संकल्प करके जाओ, तभी हम आपको बुलाएंगे। आज आपसे हस्ताक्षर हाथों से भी, आपके अंगूठों के निशान हाथों के अंगूठों के भी ले लेंगे और पैरों के अंगूठों के भी ले लेंगे। तभी यात्रा सफल होगी। कि कृपा है कि जब हम आएंगे तो हमारे हाथों से भगवान की स्थापना, हम कौन होते हैं भगवान को स्थापित करने वाले? जहां गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इतना ज्ञान दे दिए हमको गुरबाणी में कि थाप्या ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन। हम कहाँ कहीं स्थापित कर सकते हैं भगवान को? भगवान ने हमको स्थापित किया है, जन्म हमें भगवान जी ने दिया है। हम भगवान जी को कहां से जन्म देने वाले हो गए या उनका मंदिर बनाने वाले? हाँ, वो हम पर कृपा कर रहे हैं, ये हम पर कृपा कर रहे हैं, और ये कृपा हो रही है, दिख रही है, सब महापुरुषों की कृपा है। मैं ज्यादा शब्दों में नहीं बोलना चाहता। देखो 3 दिन में मैंने आपके माइक भी नहीं पकड़ा, आप लोगों को सिर्फ उतना ही बोला जितना मेरे को जरूरत थी। तो मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो आशीर्वाद की जरूरत है जो आपसे मुझे पूर्ण तौर पर प्राप्त हो रहा है। आपके सत्संग कीर्तन का आनंद मुझे सदा प्राप्त हो रहा है, वही चाहिए, उसी के लिए हम आए हैं। शत शत प्रणाम करता हूँ, अपनी शब्दों को विराम देता हूँ। महादेव को, हनुमान जी को, हमारे प्रभु को विनती प्रार्थना करता हूँ,
कि प्रभु कहीं कोताही रह गई हो, आज कहीं कहीं कमी रह गई हो, इस कार्य में, इस शुभ कार्य में, इस शुभ सुंदर आपने इतना सुंदर समय दिया, कोई भी कमी रह गई हो तो हम सबको माफ कर दीजिएगा, कृपा कर दीजिएगा, बड़ी कृपा। धन्यवाद। परंतु महाराज अपने साथ संगत के साथ सिद्धाश्रम सत्य पढ़ाए, उनको बहुत बहुत सिद्धाश्रम सत्य सिंह की तरफ से धन्यवाद। आज के अध्यक्ष पद और आज से किसी को कुछ दे देना, एक वर्ष तक और लंदन के सिद्धाश्रम से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे, जहां पर संतों ने जो है वो सनातन का संदेश दिया है और वैश्विक मंच पर जो है वो सनातन धर्म का संदेश इस दौरान संतों की ओर से दिया गया। और आज इसी के साथ ही संत संसद के चौथे दिन का समापन हुआ। आगे और भी एक कारबार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में देश के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। 58.90 करोड़ जनधन खातों और 3.10 लाख करोड़